So children, slowly a recap. By now we know what we understand by the word electronic configuration. Okay, for the first 20 elements we have understood them. Electronic configuration. Any child has any doubt, any stage, do not hesitate, and we will go by your book. You don't worry, but you start knowing these basic things. Electronic configuration I'm ticking, and this you know for the first 20, right? First 20. So what I will suggest is that since you have your periodic table, you make one periodic table which is only till the first 20. बाकी आपको चाहिए नहीं, ठीक है? So when you are hitting the first 20, by now you should also know that when you hit this first 20, you will be actually going up till how many? You will be targeting groups, 18 groups. But the 18 groups you will target will be in a very stylish manner. You will be targeting group 1, group 2, group 3. After that, there will be a silence. And then you will go to group number 13, 14, 15, 16, 17, 18. So you make your customized periodic table. That can be one homework. तुम्हें मजा आएगा, बाकी सब छोड़ दो. और इसमें हमें क्या क्या देखना है? How many periods we will see? Period 1, hydrogen, helium. Period 2 है लीना, lithium and neon, right? Hydrogen यहाँ पे होगा और यहाँ पे कौन होगा? Helium होगा. Period 2 में lithium and neon, last वाला. Period 3 में है लीना, sodium and argon. And period 4 is potassium. This much only we study. हमें इससे ज्यादा पढ़ना है. लीना की रब से फरियाद, तो है लीना की तक रहता है हमारा, ठीक है? ये हमें पढ़ना है. आज हम इससे आगे बढ़ेंगे. We are going to start going ahead from this. So we first need to know two things out here. A concept called valence electron. Valence electron. Okay. So let me take two atoms whom you know. हमें बहुत पता है वो atoms. तो मैंने एक एटम लिया, ये है सोडियम का एटम एक लिया मैंने, ठीक है? और सोडियम के एटम में मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू मेक सम ऑर्बिट्स. सोडियम क्या होता है बेटा? 281 होता है. सोडियम इज 281. ऐसा नहीं होगा, नहीं, छोड़ दो, रखो. सो सोडियम द फर्स्ट वन 2. Okay, so this is my sodium atom. This is sodium nucleus. And how many? 2. क्लियर है? ठीक है? अगर आपको ट्रबल हो रहा है तो सोडियम्स एटॉमिक नंबर इज 11. So its atomic electronic configuration is how much? 281. क्लियर? समझ में आया? ये पोर्शन बेटा छोटा कर दे रहा हूं या मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं आएगी अभी, तो मिटा ही दो इसको. 1 मिनट, ये सब मिटा देते हैं. इतना बना लीजिए. सोडियम बन गया. अभी हम क्लोरीन बनाएंगे. आइए क्लोरीन बनाइए. क्लोरीन इज व्हाट? क्लोरीन इज 287. सो वी आर मेकिंग अ क्लोरीन न्यूक्लियस. ओके, ये है क्लोरीन पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? एंड लेट्स फिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन. सो 2, 8, 287. So this is chlorine. Chlorine is 287. Its atomic number is 17. Okay, if you are done with this, let's go ahead and understand. Okay, ये रहेगा आपके periodic table में भी रहेगा. Can you quickly see at your periodic table which period you have sodium and chlorine? No periodic table. I had said that this class you will need a periodic table. Okay, very good. Third period, right? Third period में क्या है? क्लोरीन. इनमें शेल्स कितने हैं जरा देखो तो.
Period tells you how many shells you'll have. हाइड्रोजन किस पीरियड में है? हाइड्रोजन में एक ही शेल होगा. लिथियम किस में है? लिथियम में 2 होगा, 2 1. और पोटेशियम किस में है? देखो, फोर्थ पीरियड, उसमें 4 शेल होते हैं, 2 8 8 1. समझ में आया अभी? तो यहां से लेके some frying is coming, तो कुछ तल रहा है. So if you see, it starts, the third period starts from sodium, goes up till chlorine, क्योंकि रूम में बच्चे अलॉट हो रहे हैं ना, and the allotment ends at argon. Look, the allotment will end at argon. Have you understood? So we need to understand what is valence electron. So children, now pay very good attention. This last shell is always known as my valence shell. इसको हम बोलते हैं valence shell. Clear? Understood? Valence shell. हिली रीजन्स में जो लोग रहते हैं उन्हें हिली इनमेट्स बोलते हैं. तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इसी तरह ये सब भी, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. हैव यू अंडरस्टूड? लास्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल. लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अन्विता वहां बैठना चाहती तो आराम से बैठ सकती है, मतलब देख लो, ठीक है. जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, हालांकि इसके बारे में इतना पढ़ते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब समझे हो? ये है मम्मी के प्यारे बच्चे जो मम्मी बाहर खेलने के लिए नहीं भेजती है. तुम लोग घर पे ही बैठोगे और हमेशा इंडोर गेम्स खेलोगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो समाज के साथ मिक्सअप करता है. तो ये हो गए बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? द लास्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग ऑन द लास्ट शेल ऑफ द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इससे हमें केमिस्ट्री में इतना काम धाम नहीं है एट दिस स्टेज. दे आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाउंड टू द न्यूक्लियस. बाउंड का मतलब क्या है? किसके साथ बाउंड है? न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं, बस चिपका पड़ा हुआ है वो लोग. इतना समझ में आया बेटा? ठीक है. अब यहां पे सवाल आता है, ये हो गया हमारा वैलेंस शेल, फिर हमने क्या देख लिया है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. अब द एंटायर गेम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आगे तो यही पढ़ना है हमें. रिएक्शंस, केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी will all be a function of this वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल जैसा लिख दिया. फंक्शन मतलब समझ रहे हो? यही गाइड करेंगे ये पूरा खेल, इसीलिए हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं. And if you don't understand that in the language of chemistry, then the warfare will always happen with the forces that are deployed at the border. These internal police station guys have nothing to do when a war will happen. मतलब कल सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब वॉर होगा, तो सोडियम का वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा और क्लोरीन का वैलेंस शेल. बोथ आर नोन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल. और उनमें कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए मैंने कहा रिएक्शंस, रिएक्टिविटी, ऑल आर फंक्शन ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है. कोई क्यों रिएक्ट करता है, कोई क्यों रिएक्ट नहीं करता है, इसमें ये अंदर वाले कुछ नहीं करेंगे. कौन करेगा? वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है? यस. Bound electrons are the electrons which are inside the valence shell. Valence shell, last shell को valence shell बोलते हैं. जो last वाला, outer most. ये समझ में आया? Outer most shell क्या हो गया? Hill. इसमें रहने वाले hilly people. Valence shell, valence electron. तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ये कर्तव्य के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें कुछ आता. अब बोलो, हमारे सरहद पे लड़ाई होने से हमारे यहां से पुलिस स्टेशन से लोग लड़ने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना. ये वही सब है. और ये है सब बीएसएफ, आर्मी. तो हमने कहा आगे चल के जो रिएक्शन रिएक्टिविटी होगा ये इन वैलेंस शेल के ऊपर ही होगा. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैज एनी डाउट? डोंट हेजिटेट. जैसे इसने पूछ लिया करो. एंड योर क्वेश्चन कैन बी एज इडियटिक बिकॉज यू थिंक इट्स इडियटिक. रिमेनिंग साइलेंट इज मोर डेंजरस. चले आगे. राइट. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड the math behind valence electron and an atom.
because every time, why I am saying an atom, because children, you will be saying that sir, I want to test the reactivity or analyze the reactivity of oxygen. मुझे oxygen, I want to see what is the perspective of India in this meeting. तो इंडिया नाम का कोई थोड़ी जाता है, इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ना. तो हमारे लिए ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं. एटम मतलब everything you are studying at atomic level. So what this atom will behave of oxygen is how oxygen will behave. What that person of India speaks at United Nations is what India's point of view is that. Have you understood? So if we are interested to know the math, why we are interested to know the math behind the valence electron and atom? Because when you talk about reactivity of say sodium, and you know that sodium's reactivity is based on the function of valence electron. तो आप हर बार तो ऐसे सर सोडियम का कितना था, इसका कितना था, ऐसे थोड़ी याद करोगे. आपको कुछ एक मैथमेटिक्स चाहिए, तो वो मैथमेटिक्स पहले समझ लेते हैं ताकि जो भी एलिमेंट हमको बोलेगा हम फटाक से बोल सकते हैं इसका रोल नंबर इतना है. अभी आप मेट प्लस में जाते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल दीजिए, वो पूरा दुकान थोड़ी खोजता है, वो 1 मिनट में जाके और कुछ मैडम आपको दे देगा. तो because you don't know the maths, you don't know the math, how the things are cataloged. In a library also things are cataloged, they know it. So let's see the math. Okay, now I don't want you to draw, I just want you to understand and enjoy. Don't draw anything, लेकिन थोड़ा सा मुझे तो ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो चीज बनेगा नहीं. So हम आज मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट छोटे छोटे कुछ मार्क्स बना रहा हूं. दिस इज ग्रुप 1, आपको बनाने की जरूरत अभी है नहीं. ओके, दिस इज ग्रुप 2, फिर बहुत सारा गैप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना. एक केक से 2 स्लाइस निकालने हैं तो कितने बार काटना चाहिए? 2 बार काट दो. 2 बार काटने से 3 स्लाइस निकलेगा, एक ही बार काटते तब 2 स्लाइस निकलता है. बेवकूफ की तरह मत करो, ठीक है. चलिए, सबसे पहले मैं इन ग्रुपों को नंबर देता हूं. G1, G2, G13, G14, G15, G16, G17 और G18. क्लियर, समझ में आया? ये हमारे ग्रुप्स हो गए पीरियोडिक टेबल के. अब मैं यहां बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़ने वाला हूं. सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वर्ड कॉल्ड मैथ बिहाइंड. So what are the parameters I'm going to study? The first parameter that I will study is valence electron. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भाई साहब हिसाब क्या है? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिसाब 2 तरह से हम निकालते हैं. फॉर G1, G2, G13, और यहां एक होगा G14, सॉरी 1 मिनट, G1, G2, G13 टू G18. यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा आपको. यू कैन इमीडिएटली प्रेडिक्ट. G1 और G2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम एज ग्रुप नंबर. G1, G2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो ग्रुप का नंबर है. यानी कि ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1. चेक कर लो. हाइड्रोजन 1, लिथियम 2, 1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881. तो ग्रुप 1 में सबका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1. ग्रुप 2 में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा. बेरिलियम 2, कैल्शियम 2, मैग्नीशियम 2, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं. समझ में आया? ये आपको लेकिन याद हो जाना चाहिए अभी. दैट मींस व्हाट यू शुड नो, ये 20 कहां बिखरे पड़े हैं वो पता होना चाहिए. वो भी बना देंगे एक बार फिर. ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला इज 18 माइनस ग्रुप नंबर. 18 माइनस ग्रुप नंबर. 18 माइनस 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी 0. 8. किसने 8 बोला था? गुड. 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी 8. बट यहां पे एक केस है. यहां पे एक केस है. An exception will be there. The exception is if single shell
if atom is single shell, then valence electron is always equal to 2. That's why here I will write two things. What will I write? I'll write two values. I'll write 2/8. Why? Just see. I have helium also out here. Helium atomic number is 2. It has got only one shell. So helium's valence electron is only 2. But after helium, if you see neon, 8. Argon, 8. Krypton, 8. Xenon, 8. Radon, 8. Clear हो गया? समझ में आ गया? And that 8 is nothing known as, जो यही तो आपने पढ़ा था, 2 को क्या बोलते हैं हम? Duplet. याद है ना? 8 को क्या बोलते हैं? Octet. Duplet is always when n is equal to 1 और ये है n greater than 1. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. बाकी सब आसान है. 10 - 17 7. जरा देखो तो फ्लोरीन में 7 है, क्लोरीन में 7 है, सब में 7 आएगा. क्लियर हो गया? इसके बाद आता है 16. इसमें 6 आएंगे. ऑक्सीजन में 6 है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, उसको भी 6 है. इसके बाद आएंगे 5. नाइट्रोजन में 5 है, उसके नीचे फास्फोरस है, उसको भी 5 है. उसके बाद आता है कितना? 4. कार्बन में 4 है, सिलिकॉन में भी 4 है. उसके बाद आता है 3. बोरॉन में 3 है, एल्यूमिनियम में भी 3 है. क्या आपको? हाँ. 18 माइनस ग्रुप नंबर. अरे सॉरी, 18 माइनस ग्रुप नंबर मैंने गलती लिख दिया है यार. आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. नहीं, इट्स एक्चुअली ग्रुप नंबर माइनस, sorry, 1 minute. I got carried away. Children, it's my fault. 1 minute. Very many thanks for pointing out. It is group number minus 10. Sorry, not 18 minus group number minus 10. Thank you so much for pointing it out. कभी कभी थोड़ा ज़्यादा excited हो जाता. My mistake. Group number minus 10. So group number is 18. Good. See, this is called active listening. आपको जैसे मैं कहता हूँ ना, take your hand, put it on your nose, and then try to pull it. मैंने कान पे पकड़ा है, आप भी कान पे ही पकड़ रहे हो. ये active listening नहीं है. इसलिए मन लगा के सुनिए. वेरी गुड हाविया फॉर पॉइंटिंग दिस आउट. ठीक है, करेक्ट. इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टोरी क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बिफोर अंडरस्टैंडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड कॉल्ड वैलेंस शेल. द शेल that is at the outermost shell of an atom is called valence shell. Electrons that reside in the outermost shell are known as valence electron. These electrons will be playing a key role in deciding chemical reactivity reactions of particular element. Rather, the element is always represented by the atom. So whenever we talk about an atom, and when we want to know what is the reactivity of that atom, all we are interested is to find out what is its valence electron. First of all, is there a maths to find out the valence electron? Well, yes. For group 1 and 2, the valence electron is always the group number. Whereas for group 13 onwards, we follow the formula group number minus 10. That is what I have written. Group number minus 10. However, in this, please remember, when you are in group 18, if you are a single shell, then your valence electron is 2, which is the case of helium. Rest all follow group number minus 10, which is 8. Is anything an issue for anyone out here? यहाँ तक समझने में ठीक है? फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल और भी लाएंगे. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा, इसको मैं अभी कर दूंगा छोटा, बिकॉज आई कैन चेंज द व्हाट यू कॉल द सो कॉल्ड periodic table every time. Okay. Right. अंडरस्टूड इतना तक? चलिए अब अगला टॉपिक सीखेंगे. अगला टॉपिक थोड़ा सा क्लमजी है लेकिन सीख जाएंगे. वैलेंसी.
ये जब समझ गया आधा क्लियर हो गया आज के ये दिस द क्रक्स वैलेंसी. नाउ remember, before understanding valency we have to understand something, concept of stability, or you can use the word stable. Imagine I am an atom. I am the atom. Okay, I am the atom. To me there can be two choices: stable, unstable. Agree or not? If I am stable, then all is well. And if I am unstable, then there is lafda. Agreed? As an atom, मैं stable हो सकता हूं या फिर मैं unstable हो सकता हूं. अगर मैं stable हूं तो all is well. और अगर मैं stable नहीं हूं तो there is lafda. And what does this lafda means? This lafda means if I'm unstable, I will be in search of stability. मैं बाहर निकल जाऊंगा मॉर्निंग वॉक में, स्टेबिलिटी तुम कहां हो ढूंढूंगा. वेयर इज स्टेबिलिटी? और स्टेबिलिटी तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? लेट्स बी वॉकिंग पार्टनर्स, मींस यू विल फाइंड अदर अनस्टेबल एटम्स, है ना. एक तुम ही तो परेशान आत्मा नहीं हो ना दुनिया में. अदर अनस्टेबल एटम्स विल कम. आई एम आल्सो अनस्टेबल. और इस अनस्टेबल एटम को पाने के बाद आपका क्या होगा? इसके साथ रिएक्शन होगा. या तो आपको इस एटम में अपनी खुशी मिल जाएगी, शांति, और आपको शांति मिला मींस इसको भी शांति मिलना पड़ेगा, तब ना ये शादी हो सकता है. वन वे तो हो नहीं सकता है ना कि हमको आप अच्छे लगते हो, हमको तो आप गोबर लगते हो, तो थोड़ी इसमें स्टेबिलिटी हो सकता है. नहीं हो सकता है. इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? सो यू विल बी हंटिंग फॉर सम मोर, लाइक वी वॉक इन द मॉर्निंग, there's so many people walking, you will see two walking people again meet together, then they start walking together. Some people, like once you started walking with me, I'm not liking you. अच्छा मुझे ना अभी थोड़ा सा जाना है, आप चलते रहिए, कटवाना है इसको, जाओ चिपको मत मेरे साथ. ऐसे भी होता है. Have you understood? Now let's first see the story of the people who are stable. ये stable वाले कौन है? कौन यार टकलक टकलक कर रहा है? बगुल कीप द पेन ना. ठीक है. So now let's look at the story of stable. तो stable में ऐसा है कि ये जो ग्रुप 18 है ना, ये ग्रुप 18 में जो लोग हैं ये सब स्टेबल है. इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनर्ट, नोबल, और ये सब गैसेस है. इनफैक्ट इनका डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ है. दे आर ऑल नोबल गैसेस, दे आर ऑल स्टेबल. और जो ये लोग नहीं है वो सारे क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए, है ना. तो ऐसे आप सब्जेक्टिव क्वालिफाई तो नहीं कर सकते हो. वो है टेस्टी नूडल्स, ये है भद्दा नूडल्स. हाउ डू यू मैथमेटिकली से? नहीं उसने खा के बोला वो टेस्टी है, बट दैट्स सब्जेक्टिव. यू हैव टू गिव अ मैथमेटिकल थिंग. सो द मैथमेटिकल थिंग विल बी दैट द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी शुड बी either the atoms here have their valence shell with a duplet satisfied or with a octet satisfied. जरा देखो तो, who all are residing in that group 18? Helium. Helium is a single shell. क्या उसका डुप्लेट सेटिस्फाइड है? बिल्कुल. हीलियम को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो सब एक से ज्यादा शेल वाले हैं. क्या उनका ऑक्टेट सेटिस्फाइड है? है. तो ये देखो, अभी आप जब इसको स्टेबल बोलते हो ना, दिस थिंग इज अ सब्जेक्टिव वर्ड. ये नूडल्स टेस्टी है, पर आप इसकी टेस्ट को मैथमेटिकली नहीं, इसको हमने इंडिया में सर्वे किया था, इसको 4 and above stars मिला है. दैट मींस 4 and above stars noodle is a good noodle. Somewhere we have to be mathematical. Here the mathematics is, if you are having, what was so special in them? The thing that was special in them is that they had a octet or a duplet criteria satisfied, which now means that all these unstable fellows, they do not have duplet और octet complete. बात समझ में आ रहा है आपको? Let's look at hydrogen. One shell, कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही, कंप्लीट नहीं है उसका. Let's look at lithium. 2 शेल है, कितने हैं? 2 1, right? So when you say that they do not have an octet or a duplet complete, then if I go by my last line, then when you say this, and if this is your eyes, if this is your eye, what are you eyeing actually in them? You are eyeing
the valence shell, or rather to be very specific, you are eyeing the valence electron. Yes or not? नहीं तो आप कैसे बोलते हो कि इसका कंप्लीट नहीं है? आपको पूरा एटम देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिंगल शेल हो तो भैया ठीक है, तुम्हारा एक ही शेल है, उसी को देख लेंगे. अगर आप मल्टी शेल हो तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? लास्ट वाला शेल देखेंगे. इसीलिए आप याद करो, आई हैड रिटन समथिंग दैट एवरीथिंग विल बी अ फंक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब आपको समझ में आ रहा है व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सो इंपॉर्टेंट. और कहानी अभी काफी आगे बढ़ चुकी है. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, बिकॉज द वंस हु आर फुलफिल्ड दे आर नॉट आवर हेडेक. The ones who are not fulfilled are our headache. And if you are not fulfilled, अभी क्या होता है, आपके एग्जाम से पहले आपके मम्मी डैडी आपको बोलते हैं ना पेंसिल रूलर सब है, तो क्या है उसमें उनको टेंशन नहीं है, क्या नहीं है उसमें टेंशन है, कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोलो बेटू और कितना चाहिए, अच्छा लिथियम हो, अच्छा भैया साथ नहीं है तुम्हारे पास, लोग को कुछ जुगाड़ करेंगे, पापा कुछ जुगाड़ करेंगे. तो यहाँ पे भी वही जुगाड़ वाली कहानी आएगी. सो इफ यू आर सेइंग दैट दे डू नॉट हैव देयर duplet or their octet complete, then your tension is that you are looking at their valence shell and your eyes are on their valence electron. And by now you know the count of all valence electrons. Is it fine? Right. So can we go to the next story? Is there anything here you would like to ask? Yeah, one by one. पूछ लो, पहले ही पूछ ले. अभी छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है. अभी तो हम बच्चों में ढूंढ रहे हैं, बच्चों में खामी क्या है. ऊपर से आप कह रहे हो कपूर साहब के बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं, वो बाद में. कपूर साहब के पास बेटा है या बेटी है वो तो पहले देख लें. उसके बाद जिद्दी बेटा है क्या जिद्दी बेटी है वो देख ले. उसके बाद कपूर साहब के बेटे क्यों अच्छे हैं. आपका क्वेश्चन और आगे है. सो पार्ट यस, ग्रुप 3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला ना. ग्रुप 3 नहीं रहता है. ग्रुप 3 को हम इसमें स्टडी नहीं करते. वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें डुअल कारोबार है, वो आपका दिमाग 12 में खाएगा. इसीलिए हम 1 2 और फिर छोड़ देते हैं. इसको ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. ग्रुप डी, इसको डी ग्रुप बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं. और फिर हम डायरेक्टली 13 में जाते हैं. एनी सवाल, एनीवन एल्स? नो. सो आगे बढ़े. आइए, आगे बढ़ने के लिए आप थोड़ा सा और रेस्ट कर लीजिए. मुझे वो चीज फिर से एक बार बनाना पड़ेगा. सो मैं दोबारा एक बार बना लेता हूं. Group 1, Group 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ये आइए. This is G1, G2, G3, G4, G5, G6, क्या लिख रहा हूं, G13, G14, G15, G16, G17, G18. Correct? Okay. And now I'm coming to valence. नहीं, valence electron लिखने से पहले थोड़ा सा और लिख लेते हैं. So all we are studying what beta? We are studying periods. How many periods are we studying? We are studying period 1, period 2. That's it. Period 2 and above. उसका और नहीं लिख रहा हूँ. So and period 2 इससे आगे. ठीक है. और कुछ एलिमेंट्सों को भर देता हूँ फटाक से ताकि आपको क्लियर रहे. Right? I have got hydrogen, E, ना और E. ठीक है. इधर कुछ नहीं आएगा, इधर जाके हीलियम आएगा, नियॉन, आर्गन, और फिर नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे क्या आएगा? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. फिर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ले ही लो, ले ही लो. ठीक है. यहाँ पे कौन आ गया? मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन। ठीक है, ये हमारे 20 हो गए, ऑल 20s आर हियर। नाउ let's go by period. This is my period 1, period 2, period 3, period 4। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं पीरियड्स में हमारे n की क्या वैल्यू है। n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये शेल में हम डुप्लेट की तलाश को ही देखेंगे, डुप्लेट। So let me write it a little bit nicely. So in P1, the value of n is equal to 1, means here my criteria of stability will be duplet. If hydrogen would have had 2 electrons, hydrogen will be also stable, but hydrogen is not stable, helium is stable, helium has got 2 electrons. Atomic number पता है ना, 1 2 ऐसे जा रहा है। इसके बाद वाले में कैसा हो रहा है, इसके बाद वाले सब लोग, ये जो सारे लोग हैं ना, इन सब में n is greater than 1, so हम ऑक्टेट की तलाश करेंगे। और इन तलाश करते वक्त याद रखिए, when we are hunting all these things, then please remember that these all in which this fellow has a duplet and its duplet is satisfied, and these all rather have their octet satisfied. So in other sense I will say that they are stable, and they are stable means they are कॉलोनी के अच्छे बच्चे जिनको बनना है इन बाकी लोगों को। The parents will always say become like them। शर्मा जी के बेटे हैं ये सब। ठीक है, अब देखते हैं, सवाल आता है सबसे पहले वैलेंसी पे बात करते हैं, and I'll be using my yellow pen now। Okay, so now I'm talking about first thing which is known as valence electron. How many valence electron here? 1. How many here? 2. Clear? How many here? 3, 4, 5, 6, 7. Now change my color back to indigo because ये तो शर्मा जी का बेटा है, इसका 8 है या फिर 2 है। Clear? How did I find all these things? For these two, group number is the valence electron, and for these it should be group number -10, that you know from our previous slide। ठीक है, अब सवाल आता है, और यहां से ध्यान से सुनिए, अब सवाल आता है वैलेंसी क्या होता है। कुछ लिखिए मत, आप समझिए पहले। वैलेंसी एक तरह का टेंडेंसी है। चोर हो आप, चोर हो या फिर दानवीर कर्ण हो, डोनर हो, वैलेंसी एक टेंडेंसी है। पहले समझिए, लिखिए मत। टेंडेंसी है टू 3 काम करने का, लूज, गेन या फिर शेयर। ये 3 एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इट इज द टेंडेंसी। किसकी टेंडेंसी है? एटम की टेंडेंसी है, एटम्स टेंडेंसी टू लूज, गेन और शेयर। क्या? पकौड़े, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों करेगा? तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए वैलेंसी है क्या? एक टेंडेंसी है। किस चीज की टेंडेंसी? लूज, गेन, शेयर। कभी नहीं भूलोगे। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों करते हो बेटा ये चोरी, ये सब? टू गेन स्टेबिलिटी, stability by replicating the electronic configuration of nearest inert gas atom। अभी लिखो मत, समझो। मतलब आप सब कुछ रेप्लिकेट करना चाहते हो। किसके? शर्मा जी के बेटे की आदतें रेप्लिकेट करना चाहते हो। पर देयर इज अ प्लेस, नॉट एनी एवं शर्मा जी, द नियरेस्ट शर्मा जी। हमारे यहां से 500 किलोमीटर दूर एक शर्मा जी का बेटा है, बेटा वैसा बनो। हम तो उस बेटे को देखे ही नहीं है, तो कैसे बनेंगे उसके जैसा? अच्छा, वो है
और शर्मा जी, उनके बेटे भी अच्छे हैं, तो उसको रेप्लिकेट करना इजी है. Have you understood? Valency is the tendency of an atom. Which atoms? Obviously the ones who are unstable. To lose, gain or share. क्या? Electrons. Why? In order to gain stability. The entire hunt is for stability. Obviously, you know, if you look at this picture we had drawn, कि जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे. वो कैसे जाएंगे? बाय रेप्लिकेटिंग. वो रेप्लिकेट करेगा किसका? क्योंकि यही तो स्टेबल है, इसके जैसा बन जाओ, फिंगरप्रिंट इसके साथ मैच कर लेगा सब. तो रेप्लिकेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट? नियरेस्ट. माइंड यू द वर्ड इज नियरेस्ट. समझ में आया? ये नियरेस्ट क्या रोल प्ले करेगा अभी हम देखेंगे. ठीक है, अब आते हैं इस गेन लूज शेयर के बारे में. तो लूज, गेन, ये और एक शेयर बाद में देखते हैं. लूज, गेन. अब एक बात सुनिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स बाजार में फ्री मिलते हैं? नो. इफ यू गो टू अ शेयर मार्केट एंड व्हेन यू से आज मैंने इतने शेयर्स बेच दिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट में, मैंने शेयर्स निकाल दिए, आपके बेचने से नहीं बिकते हैं. You can only put a sale order on the exchange. There has to be a potential buyer. If nobody is buying your share, that day your order will go non-executed. ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी से दो. और अगर आप खरीदना चाह रहे हो, obviously there should be someone who is selling. Sometimes there are high demand shares. आप 20,000 शेयर लगाओगे, आपको सिर्फ 10,000 मिलेंगे. मिले ही नहीं आपको, किसी और ने भी खरीद लिया है. Are you understanding? So lose का मतलब है कि कोई तो एटम है, कोई तो एटम है जो अगर ये लूज करता है तो इस एटम को हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे. और अगर आप गेन कर रहे हो, जो इसको गेन कर रहा है, उस एटम को हम क्या बोलेंगे? उस एटम को हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम. और अगर यहां पे n इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, n, किसी ने n छोड़ा था तभी ना किसी ने n गेन किया. बाजार में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते भाई कि ऐसे चल गए आप रत्नदीप की तरह, ममा लेट्स टेक सम इलेक्ट्रॉन्स ना, फ्रिज में वो पुराने वाले ना खराब हो गए हैं और उसने ना सलाद बना लिया इलेक्ट्रॉन का. ऐसा कुछ नहीं है. इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो ही कोई लेगा. समझ में आया? अब इसमें एक रूल है कि ये जब सब तो देने लेने का काम है ना, इसमें मिनिमम आप 1 कर सकते हो, मैक्सिमम 3 कर सकते हो. देना चाहते हो कितना दे सकते हो? 1, 2, 3, 4. लेना चाहते हो वही लोगे जो कोई दे रहा है. तो क्या क्या ले सकते हो? कोई 1 दिया तो 1 लेंगे, 2 दिया तो 2 लेंगे, और कितना? 3. क्लियर? समझ में आया? ये है लूज और गेन का. समझ में आया? अब दूसरा बात आता है शेयर का. शेयर, तो शेयर का किस्सा भी ऐसा ही रहता है. शेयर में कैसा रहता है? हमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, लेकिन कोई बेचने वाला नहीं है. तो हम क्या करते हैं? आपस में शेयर कर लेंगे. हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पर कोई डोनर नहीं मिल रहा है आपको. तो हम लोग क्या कहते हैं? एक काम करो, जब तक नया बिस्कुट नहीं आ रहा है, इसी बिस्कुट को तोड़ के, मम्मा ने कहा है शेयर विथ फ्रेंड्स एंड ईट, पर 3 बिस्किट ही शेयर कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि गिनती तो वही है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3. सो हाउ मेनी कैन यू शेयर? यू कैन शेयर आइदर 1. लेकिन यहाँ पे एक बात आता है, शेयर जब करोगे ना, तो यहाँ पे दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये है मेरा एटम 1 और ये है एटम 2, ये भी तो एक देगा. तो हम कहते हैं यू कैन शेयर 1 पेयर, 2 पेयर, और कितना? 3 पेयर्स. शेयर में एक एक मत बोलो, शेयर में पेयर होगा ना. आप भी एक दे रहे हो, मैं भी एक दे रहा हूं, तो हम कितने पेयर्स? इफ 2 atoms decide that since we are not getting any donor, we are going to share, so we can share 1 pair, 2 pairs or 3 pairs. If you want to donate, we will donate 1, 2 or 3, and if we are accepting, we'll accept 1, 2, 3. इतना समझ में आया? आगे की स्टोरी मत समझो, जितना बढ़ा रहे हैं उतना समझिए. हाँ, इसका मतलब वो उसका मर्डर कर देगा, नहीं करेगा. इतना कहानी समझ में आया? इसको छोड़ा करेंगे, अभी उपाय नहीं है. बार बार प्रेडिक्टेबल नहीं बना सकता हूं मैं. बना सकता हूं, बना सकता है, माउस लेने से हो जाएगा. 1 मिनट देखते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो गया. I don't want the class notes to get damaged. Oh.
1 minute, हाँ. I'm just checking. काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. नहीं, ये ऐसे नहीं जाता है. चलो, आर वी फाइन? ये सब थोड़ा छोटा करो जो भी लिखा था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बैलेंस ही सीखना है. तो ये कहानी को कर देता हूं थोड़ा सा छोटा. I know that, but in that copy, it does. When you flip up the other screen, it doesn't take it. If it is copy and paste in this screen, then there is no issue. ये चला जाएगा दूसरे में. Anyways, you have the video and you will be having this notes also. But when you get the notes, you will get it like this. उसमें वो वाला रूप नहीं मिलेगा लेकिन. Okay. So let's start now. Our hunt, valency. ठीक है. और हम एलिमेंट वाइज नहीं जाएंगे, हम ग्रुप वाइज जाएंगे. चलिए ग्रुप 1 की कहानी देखते हैं. ग्रुप 1 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कोई बोल पाएगा? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो if it is hydrogen, then you are on shell number 1. In order to become helium, what is your extra demand? Group 1 में we have got a special one called hydrogen. Hydrogen has got how many electrons? 1 electron. And since for hydrogen n is equal to 1, that is your shell number is 1, whom are you targeting? You are targeting helium. Helium has got 2 electrons. Got it? So hydrogen has got a shortfall of how much? 1 electron. समझ में आया? So hydrogen has a shortage of 1 electron. Do you agree? Now my first question to you is that, can hydrogen donate its 1 electron, whatever is there? नहीं कर सकता है. हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो आई डोंट नो वेदर यू नो द हाइड्रोजन एटम और नॉट, हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन बिकम्स अ प्रोटॉन. So its existence is lost. So don't expect hydrogen to give away. एक ही तो मेरे पास पेंसिल है, तुम्हें दे देंगे तो एग्जाम में किससे लिखेंगे? So hydrogen is not going to donate its electron. समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखिएगा. लेकिन है कहां? इसलिए अच्छे पीरियोडिक टेबल में ना हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नहीं रखता है. अब आगे जब 11 में जाओगे आप पढ़ोगे, हाइड्रोजन प्लेस टिल डेट इज नॉट क्लियर वेयर हाइड्रोजन शुड बी. वो अलग से दिखाते हैं गुड पीरियोडिक टेबल्स, क्योंकि ये इट विल शो अ डेविएशन. नाउ ऑलरेडी इट इज शोइंग अ डेविएशन. व्हाई? आपको अभी तक पता नहीं. हाइड्रोजन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम व्हाट? हीलियम. सो आवर क्वेश्चन कम्स, to become helium, what is the action hydrogen has to perform? Gain 1 electron. Can it lose an electron? No. Can it share an electron? Yes, it can share also. So if I tell you what is the valency of hydrogen is 1. The number of electrons that an atom can gain, lose or share. It can gain 1 or it can share 1. हमें दे दो तो भी हम हीलियम, हमारे साथ बांट लो कोई तो भी हम हीलियम, और हमसे मांगना मत, हम दे नहीं सकते. क्लियर हो गया? आइए अगला चलते हैं. दीज आर n ग्रेटर देन 1. नाउ हम ग्रुप 1 में ही हैं. n ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल, व्हाट इज n? शेल नंबर्स. आइए जरा लिथियम को देखो. लिथियम कितना है? 3. और ये जो इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं ना, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइंड यू. lithium, because these are all valence electron, we have no intention of the other electrons. lithium का valence electron कितना है? 1. lithium को कौन बनना है? नियॉन. नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑब्वियसली 8, क्योंकि ये तो ग्रुप किस में बैठा हुआ है. और मैं यहां नहीं लिखता हूं इसको, शायद इसको यहां लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस ग्रुप में the valence electrons are either going to be 2 or they are going to be 8, and now we are concentrating all on 8. Lithium has got 1. What is the shortfall to become this? 7. 7 चाहिए. वो लिखा था ना यहाँ पे अभी, हाँ यहाँ
क्या लिखा था हिसाब? कोई डोनेट करेगा, साथ चाहिए तो डोनर चाहिए साथ देने वाला, कोई देगा साथ? 3 ही मैक्सिमम है। हाँ, तो इसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये कहता है बेटा पापा मैं क्या कभी अच्छा बेटा नहीं बन सकता हूं? नहीं बेटा, तुम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो अच्छे बेटे नहीं हो सकते हो। पापा मैं शेयर भी तो कर सकता हूं, तुम्हारे पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हमेशा पेयर में होता है, तुम एक दोगे तो दूसरा वाला एक देगा, तुम्हारे पास कितने बने? 2 बने। पर तुम तो हाइड्रोजन की तरह नहीं हो ना कि ड्यूप्लेट से सेटिस्फाई हो जाओगे, तुम मोर देन 1 शेल हो, तुम्हें 8 चाहिए। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड इवन बाय शेयरिंग। तो पापा क्या करे? बेटा एक बच्चे का गला घोट दो और कोई रास्ता नहीं है, मारना पड़ेगा एक बच्चा को। तो हीलियम क्या कहता है? अब लिथियम क्या कहता है? लिथियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? लेट्स सी लिथियम स्ट्रक्चर। लिथियम हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट शेल and 1 electron in the outermost shell. It did all type of things to get 7 electrons, लेकिन मिल नहीं रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम को मेरे जैसा कोई कहता है काम करो ना, उस दिन बीमार होकर टेस्ट ही मत दो, टीचर बोलेगा ये बोर्ड मार दो 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, क्योंकि वैलेंसी में क्या था? गेन लूज शेयर। कितना लूज कर सकता है? मैक्सिमम 3। ही लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर हिम? 1. N is 1, single shell. So what should be his criteria? Duplet. Is he in duplet criteria? Yes. लिथियम कहता है मैं तो सेटिस्फाइड हो गया अभी, पर एक चीज है, तुम लिथियम नहीं रहे। यहां भी एक केस है। तो क्योंकि लिथियम अगर तुम होते, यहां पे तुम लिथियम नहीं हो। अगर तुम लिथियम हो, तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए, 3 नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। तुमने एक नेगेटिव चार्ज मार दिया, पर तुम्हारा प्रोटॉन कम नहीं हुआ, तो ओवरऑल अब तुम क्या हो गया है? तुम्हारा 2 नेगेटिव चार्ज, विच कॉम्बिनेशन आई विल से यू आर नाउ एक्सेस बाय 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिथियम, जैसे नॉर्थ इंडिया में शादियों में होता है ना, ये लड़की अभी मांगलिक हो गई है, मांगलिक लड़की। मांगलिक लड़की का मांगलिक लड़के से ही शादी होता है, याद रखना। इसका फटाक से भी शादी नहीं होगा, ये अभी मांगलिक। स्टेबिलिटी तो आ गया है, पर माथे में एक टीका भी लग गया है। हैव यू अंडरस्टूड? इसे मैं अभी और एटम नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा लिथियम आयन। समझ में आया? होल्ड इट, लिथियम आयन। लिथियम के बाद कौन आता है? इसमें देखो सोडियम। हम ग्रुप एनालिसिस करें सोडियम, जरा सोडियम को देखो तो सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ऑल्सो नीड्स 7। तो लिथियम जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लिथियम वाज टारगेटिंग टू बिकम अपने कॉलोनी के शर्मा जी का बेटा, बट लिथियम कुड नॉट बिकम अपने कॉलोनी का शर्मा जी का बेटा। लिथियम बिकेम व्हाट? पीछे, अरे यार, लिथियम बिकेम पीछे के कॉलोनी का शर्मा जी का बेटा। अपना कॉलोनी का शर्मा जी का बेटा नहीं बन पाया, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। Doesn't know, cannot finish 7, but at least got stability. In this process, also lost its identity and became lithium ion. Keep that in mind. I am removing this mark. Have you understood? Let's look at sodium. Sodium also has 1 electron. How many shells sodium has? 3. तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम भी कहता है सर 5-7 तो कोई देगा नहीं पापा, हम भी लिथियम वाला रास्ता लेंगे, हम अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा नहीं बन सकते, हम पिछले कॉलोनी का अच्छा बच्चा बनेंगे। सोडियम इज व्हाट? 281. लेट्स लुक एट सोडियम नाउ। सोडियम वाज 281 and you killed this 1 electron. Now sodium has become what? 28. But in this process it has gained a positive charge. It has become what? Sodium ion. 28 is the electronic configuration of neon. Has it attained stability? Yes, it has attained stability. बात समझ में आ रहा है? मैं इसको मिटा रहा हूं because I have to take away that sign. Now if I look at potassium, वो कहता है सर हम तो पूर्वजों के जैसा होंगे, हम बनेंगे, हम आर्गन बनेंगे। Potassium becomes 288. Did you understand the story? So on the same line, if you go to group 2, beryllium has got how many shells? N equal to 2 means it has got 2 shells. What is its electronic configuration? 2-2. इसको अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अगर नियॉन बनना है तो
6 कोई देगा? शेयर कर लो। बेरिलियम एक पेयर ला रहा है, एक और पेयर ला रहा है, तो 2 मिलेगा, 6 तो नहीं मिलेगा। तो बेरिलियम क्या बोलता है, पापा इनके जैसे ही हम भी होंगे, गला घोटेंगे, 2 बच्चे का गला घोट देंगे। तो बेरिलियम क्या फॉर्म करेगा, Be2 प्लस, Be2 प्लस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लोग क्या फॉर्म करेंगे, ये लोग सब सिंगल प्लस प्लस फॉर्म करेंगे। ये लोग क्या फॉर्म करेंगे, 2 प्लस, क्योंकि इन्हें 2 बच्चे मरवाने पड़ेंगे, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप ही होगा। बेरिलियम विल 2 बच्चा मरवा के बन जाएगा हीलियम जैसा, राइट? मैग्नीशियम बन जाएगा नियॉन जैसा। समझ में आया? इतना देखते देखते बोरोन और एल्यूमिनियम कहता है, हम तो तुमको देख के ही 3 बच्चे घोट दिए गला, तुमको देखते देखते ही 3 बच्चे का गला घोट दिया। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों बड़े डेंजरस है, इनको कहते हैं थाली का बैंगन। ना ये इधर के हुए ना ये उधर के होंगे, इनसे बड़ा सावधान रहना। इसलिए आगे चल के आप पढ़ोगे समथिंग कॉल्ड मेटलॉइड्स, नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल। मेटलॉइड्स ऐसे आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब। तो इसको हाँ, नॉन मेटल में मेटलॉइड स्ट्रक्चर दिखाएगा, नॉन मेटल भी है, मेटल आधा मेटल आधा नॉन मेटल दिखाएगा, वो बाद में देखेंगे। आते हैं नाइट्रोजन में। What is nitrogen? Nitrogen's valence electron is how many? 6. Sorry, nitrogen's valence electron is 5. 5 valence electron. In order to become neon, how many electrons nitrogen needs? 3. Is 3 a permissible transaction? Yes. Yes, 3 is a permissible transaction. So ये क्या करेगा, ये बन जाएगा लुटेरा। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूट लेगा, किसी से भी मिलेगा तो। क्योंकि क्या तो सवाल आता है, सर 3 देने वाला कोई है? अभी तो इसने 3 बच्चों का गला घोटा ना। तो बोलेगा बेटा मर्डर मत करो, बच्चों को घर के बाहर रख दो, हम आके ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर बेचता है तो कोई खरीदने वाला मिलना चाहिए। अब जस्ट सोचो, बोरोन नाइट्राइट कोई कंपाउंड है, जबरदस्त कंपाउंड, इस शादी में कोई दहेज वहेज की जरूरत नहीं है। ये 3 देता है, ये 3 ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस बनेगा। उसी तरह फास्फोरस बना, हम तो बड़े, लेकिन इनमें एक अच्छाई क्या है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो, ये अपने कॉलोनी के अच्छे बच्चे बन रहे हैं। दे आर नॉट बिकमिंग उस कॉलोनी का अच्छा बच्चा, दे आर बिकमिंग अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को तो खुजली होना शुरू हो गया। ऑक्सीजन बोलते हैं हम तो 2-2 चुराएंगे, हम तो 2-2 चुराएंगे। क्या चुराएंगे? 2-2 चुराएंगे। 2 चुराया, सल्फर भी 2 चुराएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन का बड़ा मस्त है, पापा हमारे पास सब है, सिर्फ इरेजर नहीं है। कल एग्जाम के लिए हम 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, एक ठो दे दीजिए, चुरा लो अन्विता का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं वैलेंसी की बात। Valency is the number of electrons that an atom loses, gains, share. So now look at the valency of this. What is the valency of group 1? 1. What is the valency of group 2? 2. What is the valency of group 3? 3. What is the valency of group 5? 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. But there is a difference. These 1, 2, 3 are positives. These valencies are created by losing out electrons और donating electrons. तो इनके जो वैलेंसीज होंगे इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये पढ़ेंगे आगे 9 में 10 में, जो भी है जान के रखिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इनका जो वैलेंसी है ना, इनका जो -3, 2 ये है, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। मतलब that type of valency where you have actually attained either a plus or a minus is a electrovalency. इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे अभी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये तीनों को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। कहानी समझ में आया? हाँ, इसका सुई तो मेटल में अटका है। एक मेटल लेके बेटा मेरे बिल्कुल यहां मार, तो मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाएगा। फिर उस ब्रेन को भी एक नॉन मेटल मिलेगा, उसका पॉरिज बना लो। ठीक है, तब से मेटल में अटकी है। छुरा भी मेटल होता है, मार दो मेरे सर पे। अच्छा सुनो, अभी इन दोनों को तो नहीं पढ़े हैं हम लोग। इन दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4। तो इसके 4 में हम अभी फिर शेयर करेंगे। तो अब अच्छा, उस शेयरिंग में मैंने क्या लिखा था? शेयर क्या होता है? 1, 2, 3। अच्छा, एक और बात हो गया। अच्छा, इसमें मैंने 3 लिखा है। 1 एटम कैन मैक्सिमम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो बात सही है। ठीक है,
लेकिन इनमें क्या है, एक एटम 3 होता सकता है, अभी इसको भी 8 बनना है, ये 4 लूज नहीं कर सकता है, ये 4 गेन भी नहीं कर सकता है, ये 4 शेयर करेगा। तो अभी आप कह सकते हो सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था 3 शेयर, एक एटम क्या करेगा, एक एटम एक ही एटम के साथ 3 ही शेयर कर सकता है। मींस अ कार्बन इफ इट शेयर्स विद अ कार्बन इट कैन शेयर मैक्सिमम 3, बट व्हेन द कार्बन इज शेयरिंग विद हाइड्रोजन, अब जरा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखो, हाइड्रोजन, वी सेड दैट हाइड्रोजन कैन नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, hydrogen is desperate to share one electron. So let's take one carbon. Carbon needs how many electrons? 4. Those 4 valencies we show in this manner. 4 open links खुले हैं, ये satisfy होना है कार्बन का, ठीक है। एक में हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन, how was hydrogen standing? Hydrogen was standing like this. तो हाइड्रोजन को लाके तुमने लेगो टॉय की तरह पटक करके यहां लगा दिया, यहां पे भी एक हाइड्रोजन ले आए, यहां पे भी एक हाइड्रोजन ले आए, यहां पे भी। ये जो 3 मैंने शेयर का बोला है ना, दिस 3 रूल इज व्हेन एन एटम शेयर्स विद इटसेल्फ, व्हेन यू आर शेयरिंग विद समबडी एल्स, इट इज ओनली अ सिंगल शेयर, सिंगल शेयर, सिंगल शेयर, सिंगल शेयर। क्या ये प्रोडक्ट है मीथेन CH4। और अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट लेना है, आप जस्ट देखते रहिए, आप एक चीज सुनते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जरा देखते हैं इस कंपाउंड को। कार्बन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा आउटसाइड में? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आई नीड हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स? 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 ऑक्सीजन घूम रहा था ऐसे ऐसे करके, इधर एक ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, which means 2 6. It has got how many electrons? 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. Agreed? ऐसे मंडरा रहा है ऐसे करके। तो इसी तरह एक और ऑक्सीजन आएगा। बकुल, we are trying to copy. You wanted to copy ना? Copy. 2 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब कार्बन कहता है हमको तो 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो कार्बन को ऑक्सीजन बोलता है, ए कार्बन भैया, ये काम कीजिए ना, हमारे साथ यहां पे शेयरिंग मार लीजिए। ऑक्सीजन बड़ा बदमाश है, ये शेयरिंग करते ही ऑक्सीजन का हिसाब करो, पहले 6 थे, 7 8, ऑक्सीजन तो खुश हो गया, मेरे को तो 8 मिल गए। कार्बन कहता हम बावला है क्या तुम्हारे साथ? तो किया ना, हमारा कजिन को भी लाए ना उस साइड में, हमारे कजिन के साथ भी आप 2 शेयर कर लीजिए। कजिन के साथ भी 2 शेयर हो गया। एक कजिन हुआ हैप्पी, ये भी हैप्पी। जरा कार्बन को देखो तो, पहले थे 4, 1 2 3 4, कार्बन को भी 8 मिल गए। जब भी एक पेयर शेयर होता है, इसे हम केमिस्ट्री में एक बॉन्ड से दिखाते हैं। बॉन्ड, आई हैव अ बॉन्ड विथ यू, शेयरिंग। तो आपने गाड़ी दिया, हमने पेट्रोल दिया, तो हमारा बॉन्ड हुआ। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये एटम को हम दिखाएंगे। There's a double bond between carbon and oxygen and a double bond here. This is called CO2. Carbon monoxide structure is more different. अब यहाँ पहले don't question, see these all things have been proved. Try to go stage. आप कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह आपको क्या पहले पूछना चाहिए था पता है? सर वाटर कैसे होगा? सोचो, वाटर इज H2O. वाटर का केस अलग है। ऑक्सीजन अकेला आके खड़ा रह जाता है। 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए ऑक्सीजन को? 2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां शादी हो गया, हाइड्रोजन को 2 मिल गया, बड़ा खुश हो गया। फिर ऑक्सीजन को भी 2 मिल गया, ये ऑक्सीजन भी खुश हो गया। वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसा रहता है? HOH. I'm just telling you why this is important for you to understand, though your board doesn't teach, which used to teach, doesn't teach here. Because when you go to grade 11, you will not only read this, you will read what is goddamn the angle between HOH. Yes, that's called bond angle. This is waiting for you. तुमसे मछली नहीं खाया जाता, ये कांटा वाला मछली रुक रहा है तुम्हारे लिए, जो गले में अटकेगा। तब ये बॉन्ड एंगल में तुम सोचोगे सर ये तो हाइड्रोजन के साथ जीसस क्राइस्ट जैसा है, इसका तो 180 होना चाहिए। नहीं, नहीं होगा 180। क्यों नहीं होगा 180 पता है? ये आज छोड़ देता हूं इस डिस्कशन पे, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टिंग ये जो है ना, इनको क्या कहते हैं पता है? केमिस्ट्री इज लाइक फैमिली। जॉइंट फैमिली में बेटी का शादी हुआ है,
उस घर में अनमैरिड ननद है. डू यू नो ननद मीन्स व्हाट? हस्बैंड के दो बहनें हैं, whose only job is to create कांटा for that newlywed बहू. ये इनको कहते हैं लोन पेयर. क्या बोलते हैं? लोन पेयर. और इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर. ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है, ये लोन. इसका काम ही है घर में अशांति क्रिएट करना. ये लोन पेयर क्या करेगा पता है? भाभी तुम्हें शादी में जो नेल पॉलिश मिला है दिखाओ ना, मैं इसे लगा सकती हूं. इसको भाभी के हर चीजों पर नशा है. ये लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर्स को अपने पास खींचता है. इस रिजल्ट से ये जो एंगल है ना, ये 180 नहीं होके 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है. दैट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर. दिस इज वेटिंग फॉर यू इन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप ये कैसे समझोगे? अच्छा बोलो, यहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? यहां पे कोई ननद है ही नहीं. नो लोन पेयर. हमने तो हमारी बेटी को उस घर में शादी करवाया जहां लड़का सोल लड़का है, उसकी कोई बहन नहीं है. और सास की तो डेथ हो चुकी है 7 साल पहले. हमारी बेटी तो राज करेगी उस घर में जाके. तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? लीनियर 180 डिग्री. नाइट्रोजन बहुत डेंजरस है. नाइट्रोजन हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन हिज आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड इट कैन शेयर ओनली 3. दैट मींस नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 ननद घूमते रहते हैं. जहां नाइट्रोजन का कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा ना, ज्योमेट्री खराब होगा. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आप 11 में पढ़ेंगे. सो आज आपने वैलेंसी समझ लिया है. इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप समझिए नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक में आता है, हाउ टू प्रेडिक्ट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, वी विल डू दैट. बस नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे, और मैं आपको अगर पूछूं ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, यू शुड स्ट्रेट अवे से -2 है सर. अगर आप डोनेट कर एक्सेप्ट करवा रहे हो और शेयर करवा रहे हो तो 2 है. दैट शुड कम आउट फ्रॉम योर माउथ. प्रैक्टिस दिस इन योर ओन हैंड. वी हैव जस्ट अंडरस्टूड. या बेटू, विल टेक योर क्वेश्चंस. हाँ 10 में आएगा बैलेंसिंग इक्वेशन. हाँ आयन तो आज पढ़ाए नहीं, आयन अगले क्लास में पढ़ाएंगे. आयन आत्मा है. जैसे मैं एक पापी इंसान, मेरी मृत्यु के बाद मेरा अगला जन्म बनेगा मोर. अभी मैं मरा हूं, सिर्फ मेरी आत्मा निकली है, अभी मोर बना नहीं है, तो आत्मा का ही तो है इंटरमीडिएट. दैट इज आयन. आयन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस बीच में. अब वो आगे जाके मोर बन जाएगा. वो देखेंगे कौन कैटायन होता है, क्योंकि आयन में भी आपने 2 देखा. अगर क्लोरीन 1 एक्सेप्ट करता है तो कैसा बनता है? Cl-. उसको अभी बता सकते हैं, वो 1 मिनट लगता है. 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. क्लोरीन का कैसा रहेगा? माइनस. सोडियम का कैसा रहता है? प्लस. प्लस है ना, तो इसको ऐसे लिखिएगा प्लस. हाँ बस ये कटायन हो गया, ये बन गया एनायन. Anions are the ions which are formed by accepting electrons. Cations are the ions which are formed by releasing electrons. And the minus or plus count, the plus n hota hai. That n depends on how many electrons you lost, how many you gained. But this will not be called as a, this will called as sodium ion. This will not be called as a chlorine ion. Chloride ion. Whenever you are alone, you are known as IDE. Oxide ion, oxygen ion, chloride ion, fluoride ion. ऐसे बोल. ठीक है, ये अगले क्लास में करेंगे. चलिए, इससे ज्यादा होगा तो आप प्यूक बोर लग रहा है क्या? हमको तो मजा आता है.